Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Well, yet again, I welcome you all to the video lesson, the live video lesson of accounting. Pretty much different approach as compared to having, live lessons that we were having recorded lessons just due to the surge of the coronavirus cases into the city. But now, as we feel that situation and circumstances, they're well back. Well, they're not well back on track, but obviously, in comparison, they're getting better with time. So, I'm here with another lesson, another new topic of O3. As we all know that we have ample time left till your CAIE's examinations. So that means that we have to somehow occupy this time in the best manner. As we all know, it was evident from the last video lesson that we ended up with our topic of errors of double entry bookkeeping. After we are done with the errors, well, it's now time for us to move on to one of the most important topics, out of which the examiner assesses at least 1 to 2 questions. Whenever you are going to appear your examinations, inshallah, you'll find out 5 questions. 5 questions. Let me just tell you a brief overview of your examinations. The paper 1 is going to be MCQs, and you're going to have 35 MCQs. The paper 2 is going to be of structured questions, right? And 5 questions of 20 marks each. Now, class, the topic that we are going to start today is accounting basics. But let me tell you one thing for sure, that accounting basics is basically based on the complete platform of double entry record keeping and its complete accounting flow cycle. Remember one thing, whosoever has a strong grip over accounting basics can easily secure 1 to 2 questions. It is such an important topic that at least 2 of your questions are assessed from this area. So I would rather request you all, यहाँ पर अकाउंटिंग बेसिक्स का मतलब है कैसे हम अपने डबल एंट्री रिकॉर्ड को मोल्ड करते हैं, अमेंड करते हैं, उसको किस किस फॉर्म में यूज किया जा सकता है, राइट? सो जहां तक यूजेज की बात है, हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विद अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है? हमने प्रीवियस क्लासेस में O1s में एंड O2s में we learned how to make a statement of financial position, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता था. Assets is equals to equity plus liabilities, right? अच्छा, I hope this is clear to everyone. Equity before this was named as capital, उसको capital बोला जाता था, ठीक है? अब ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 में. बिफोर दैट ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती थी. एसेट्स इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू इक्विटी, ठीक है? अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर इस इक्वेशन को हम क्लोजली असेस करें,
this one, assets minus liabilities is equals to equity. That means के आपके assets जितने भी हैं उसमें से आप अपनी liabilities को deduct कर दो तो the figure that you will be left with is your equity, आपका capital जिसे बोला जाता है. अब इस चीज को प्रूफ कैसे करना है या ये चीज आपके एग्जाम में आपको कैसे असेस की जा सकती है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज या कैपिटल डायरेक्टली. Transactions which are related to assets and liabilities, obviously these both they have an impact. ठीक है, और वो impact किसके ऊपर आता है? कैपिटल के ऊपर. ठीक है, आपके एसेट्स में अगर चेंजिंग आ रही है, आपकी लाइबिलिटीज में चेंजिंग आ रही है, उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है. किसके ऊपर आ रहा है? कैपिटल के ऊपर. दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज कंसर्न्ड अबाउट. एग्जामिनर आपसे एक चीज पूछेगा आपके एग्जाम में, वो पूछ सकता है. आप अपने पास पेपर्स का ट्रेंड देखें 2009 से लेके आज तक का, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें वो कुछ ट्रांजैक्शंस देता है और उन ट्रांजैक्शंस का वो पूछता है आपसे कि इन ट्रांजैक्शंस का बिजनेस के कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है. आइदर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. तो बिफोर अपीयरिंग दैट इट्स बेटर फॉर अस कि हम उसकी प्रैक्टिस यहां पर कर लें कि कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट किस किस तरह आ सकता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. अच्छा जी, ये हमारी इक्वेशन है. Assets minus liabilities is equals to capital या equity. If I use these two terms, equity या capital, it's one and the same thing. There is no difference in that. बेटा पहला जो impact है वो कुछ इस तरह से है. कुछ transactions होती हैं, ठीक है ना, मैं transactions की different types की बात बताने लगा हूं जिनका इम्पैक्ट आता है कैपिटल के ऊपर. किसी ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं. देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होते हैं. अब सेम अमाउंट में क्यों बोल रहा हूं? ऑब्वियसली इन इंप्लाइज ओवर हियर बिकॉज हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं. और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के अंदर एज यू ऑल नो दो इंपैक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दैट इज विद द सेम अमाउंट. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो आपकी इक्विटी है या आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर देयर वुड बी नो इफेक्ट. अगर एक तरफ से आपके एसेट्स बढ़ गए, दूसरी तरफ से लायबिलिटी भी बढ़ गई है, तो इक्विटी के ऊपर देयर वुड बी नो इंपैक्ट. अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ इंपैक्ट. कई ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आपके एसेट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, आपके लायबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाती है विद द सेम अमाउंट. ऐसे सिनेरियो में आपकी जो इक्विटी है तब भी इसके ऊपर देयर इज नो इफेक्ट बिकॉज सेम अमाउंट के साथ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों डिक्रीज हो गए. अल्टीमेटली आपकी इक्विटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता. देन देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस जिसमें अल्टीमेटली सिर्फ आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज के ऊपर देयर इज नो इफेक्ट. तो ऐसे सिनेरियो में व्हेन एवर योर एसेट्स विल इंक्रीज, तो ऑब्वियसली योर इक्विटी विल इंक्रीज एज वेल. एंड इसी की एक टाइप होगी, इसको अगर हम वाइस वर्सा कर लेते हैं, एसेट्स अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से रिड्यूस होते हैं और लायबिलिटीज पे देयर इज नो इफेक्ट, तो दैट मीन्स
आपकी इक्विटी भी डिक्रीज हो चुकी है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली इक्वेशन में अगर आप देखें, इक्वेशन में द पॉजिटिव फिगर इज फॉर द एसेट्स। तो पॉजिटिव फिगर जब इंक्रीज होगी तो ये वाली फिगर जो आपका रिजल्टेंट है वो भी इंक्रीज होगा। पॉजिटिव फिगर अगर डिक्रीज होगी तो इक्विटी भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ये हैं हमारे चार impacts. I'll now write down the fifth and the sixth one on the upper side. I hope ये ऊपर से सबने नोट कर लिया होगा। बेटा सिमिलरली जैसे हमने इम्पैक्ट की बात की कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इस तरह से इम्पैक्ट आता है एसेट्स की बेस पे, उसी तरह देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं और एसेट्स के ऊपर देयर इज नो इफेक्ट। अच्छा, यहां पर जो नो इफेक्ट था दैट वाज फॉर लायबिलिटीज, दिस एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज, और यहां पर नो इफेक्ट इज फॉर द एसेट्स। कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड एंड ऑन द एसेट्स देयर इज नो इफेक्ट, ऐसी सिचुएशन में आपकी इक्विटी डिक्रीज कर जाएगी, इट वुड बी डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन की नेगेटिव फिगर है लायबिलिटीज वो इंक्रीज हो गई है। लायबिलिटी जिधर इंक्रीज होगी वहां पर इक्विटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। एंड द फाइनल इंपैक्ट ओवर हियर इज again liabilities के ऊपर, that in case if your liabilities decrease and on assets you have no effect, that means it implies that your equity would be ultimately increased due to the decrease in liabilities. These are the 6 impacts that can be assessed in any question that is asked related to the accounting equation. I hope it is pretty much clear to everyone. Probably in the next lesson, we'll have some, a class practice as well related to these accounting equation questions. Well, moving on to our next part. The next part is related to the ledgers, the types of ledgers. In accounting basics, we are done with the first one, that was accounting equation. And the second part now is related to the ledgers. Okay. What are ledgers? भाई ओ लेवल के बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लेजर्स क्या होते हैं। लेजर्स आपके टी अकाउंट्स होते हैं। जब भी आपके अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आप कोई डबल एंट्री पोस्टिंग बनाने लगते हैं तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग करने के बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द लेजर्स, राइट? अब लेजर की कुछ टाइप्स हैं। लेजर की कुछ टाइप्स होती हैं। Ledgers are basically of 3 types: sales ledger, purchase ledger, and the general ledger. Sales ledger, purchase ledger and the general ledger. ये 3 टाइप्स के हमारे लेजर्स अकाउंटेंसी में, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो लेजर्स हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं, इनको हम टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग विद द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर क्या होते हैं? ऑल लेजर्स दैट आर related to the credit customers receivables of a business.
व्हाट आर सेल्स लेजर? सेल्स लेजर उन तमाम लोगों के टी अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस के क्रेडिट के कस्टमर्स होते हैं। क्रेडिट के कस्टमर्स का क्या मतलब है? आपके रिसीवेबल्स होते हैं। वो लोग जिनको आपने दी, ये सेल्स लेजर दे आर बेसिकली पर्टिकुलर पीपल, लोगों के नाम पे जो हम टी अकाउंट बनाते हैं जब भी उनको सेल करते हैं। जैसे लेट्स से वी सोल्ड गुड्स डॉलर 900 टू अली। अभी बेटा इस डबल एंट्री में अली को डेबिट करके 900 से हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और ये जो अली का एक लेजर बना है, अब अली कौन है? अली आपका रिसीवेबल है, आपका क्रेडिट का कस्टमर है, बिकॉज आपने उसको क्रेडिट पे गुड सेल किए हैं। उसका जो हम टी अकाउंट बना रहे हैं, ये टी अकाउंट वुड बी क्लासिफाइड, वुड इन फैक्ट बी कैटेगराइज्ड एज अ सेल्स लेजर। लेजर्स में सेल्स लेजर वो तमाम टी अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके रिसीवेबल्स के होते हैं, आपके कस्टमर्स के होते हैं। I hope it's clear to everyone. Moving on to the purchase ledger. Well, what is a purchase ledger? All ledgers that are related to the credit suppliers of a business. सेल्स लेजर तो वो थे जिनको हमने सेल किए चीजें और उनके जो लेजर्स बनाए लोगों के, ठीक है। परचेज लेजर कौन से लेजर हैं? जिन लोगों से हम परचेजेस कर रहे हैं जो कि हमारे पेबल्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, बॉट गुड्स $200 फ्रॉम एलेक्स। अच्छा, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इसकी डबल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 200 टू एलेक्स अकाउंट क्रेडिट 200। अब ये जो एलेक्स का हमने अकाउंट बनाना है, हु इज एलेक्स? एलेक्स बेसिकली आपका एक परचेज लेजर है। एलेक्स इज योर परचेज लेजर। परचेज लेजर वो तमाम लोग होते हैं, ये भी लोग होते हैं, लोगों के अकाउंट्स होते हैं, वो तमाम लोग जिनसे हमने क्रेडिट के ऊपर परचेज किया और उनके टी अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं, these are categorized as your purchase ledger. I hope it's clear to everyone. ठीक है। Now the final one is your general ledger. अच्छा जी, अब ये जनरल लेजर क्या होता है? इसकी बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, and what is that? Let's have a look on it. All T accounts or ledgers except for the sales ledger and purchase ledger are जनरल लेजर्स। बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, आपके तमाम के तमाम जो सेल्स और परचेज लेजर्स हैं, उनके अलावा और जितने भी लेजर्स बन रहे हैं, मतलब आपके जो पर्सनल अकाउंट्स के अलावा जितने अकाउंट्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे जनरल लेजर्स हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रीवियस डबल एंट्रीज की। आपने एक एंट्री पास की थी, अली अकाउंट डेबिट विद 900 टू सेल्स क्रेडिट 900। बेटा अली आपका कस्टमर था, दैट मींस ये एक सेल्स लेजर था। एसएल स्टैंड्स फॉर सेल्स लेजर। तो ये जो सेल्स का अकाउंट था, व्हाट इज दिस? दिस इज योर जनरल लेजर, बिकॉज ये डेफिनेशन के ऊपर उतरता है कि सेल्स और परचेज लेजर के अलावा आपके जितने लेजर्स हैं वो सारे जनरल लेजर हैं। उसी तरह हमने एक और एंट्री पास की थी जिसमें हमने परचेज को डेबिट किया था एंड we credited Alex with 200। अब बेटा एलेक्स तो आपका एक परचेज लेजर था क्योंकि ये आपका क्रेडिट सप्लायर है। तो ये जो परचेज का अकाउंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन योर जनरल लेजर।
और इसी तरह आपके जितने भी दूसरे अकाउंट्स होंगे एक्सेप्ट फॉर योर सेल्स एंड परचेज लेजर, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे आपके जनरल लेजर्स हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मैं एक डायग्राम इसका ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं जिसमें कि यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। Ledgers. Well, first of all, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स लोगों के अकाउंट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? वो सेल्स लेजर एंड वो परचेज लेजर होते हैं, राइट? दिस इज वन थिंग। दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है? और इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं? वो एक ही कैटेगरी है, आपके जनरल लेजर्स। बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। ये असेस की जाती हैं आपके एमसीक्यूज में भी, आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जनरल लेजर्स आगे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल लेजर्स, ठीक है, और एक होते हैं रियल लेजर्स। रियल लेजर्स और रियल अकाउंट्स, ये दोनों नाम इनको दिए गए हैं। बेटा, आपके एसेट्स के जितने भी टी अकाउंट्स होते हैं वो आपके रियल अकाउंट्स या रियल लेजर्स होते हैं। और एसेट्स के अलावा जैसे कि आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम, आपकी ड्राइंग्स एंड सो ऑन, आपके जितने भी और लेजर्स बनते हैं, they are all categorized as nominal ledgers. I hope it is clear to everyone. इस डायग्राम को आप कहीं ना कहीं पर, obviously you have the video lesson as well, लेकिन अगर आप you're maintaining your notes, उसके अंदर इसको जरूर ड्रॉ करें. It is very very imperative in order to understand this lesson. Well, this is all about ledgers. I hope it is pretty much clear to everyone. हमारी लेजर्स की ही एक रिक्वायरमेंट होती है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट एज वेल। उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेसन एज वेल। लेजर्स के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? देखो, एग्जाम फोकस पॉइंट मैं आपको बताने लगा। मेजर जो फोकस होता है एग्जामिनर का लेजर्स बनवाने पे, ठीक है, देखिए वो किस तरह से होता है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस दे आर ईदर रिलेटेड टू सेल्स और परचेज, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस अगर सेल या परचेज से रिलेटेड हैं तो दैट मींस आपसे या वो बनवा सकता है कोई भी सेल्स लेजर, मतलब वो आपको कह सकता है कि किसी भी रिसीवेबल का लेजर ड्रॉ करो, ठीक है, और रिसीवेबल का लेजर रिलेटेड होता है सेल्स के। इसी तरह वो आपसे कह सकता है कि किसी परचेज लेजर को ड्रॉ करो, किनकी बेस के ऊपर? इन ट्रांजैक्शंस की बेस के ऊपर। और परचेज लेजर इज रिलेटेड टू योर पेबल्स, जो पर्सनल अकाउंट्स की हमने बात की थी, एंड पेबल्स दे आर ऑल रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिलेटेड टू परचेजेस। अब इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है अपने मेंटेनेंस ऑफ लेजर्स के लिए, ये हमारा नेक्स्ट मोटिव होगा। और यहां से ही बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूंगा अपना लेसन
day after tomorrow on Wednesday. बस यहां तक आपने याद रखना है that now we have to learn कि अगर ledgers वो दो किस्म के मांग सकता है, receivable और payables के related, तो उनको हमने क्वेश्चन के अंदर कैसे जज करना है कि इधर वो हमारे से सेल्स लेजर मांग रहे हैं या परचेज लेजर मांग रहे हैं. इस चीज को हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेसन में. वेल, अभी के लिए आई होप थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन. फॉर टुडेज वीडियो लेसन आई एम नॉट गिविंग अ वर्कशीट अलोंग. वो इसलिए कि वी आर स्टिल लेफ्ट विद अ फ्यू थिंग्स टू स्टडी अबाउट. और जब वो हम कर लेंगे सारी चीजें तो probably in the next video lesson I'll have a small worksheet along as well. Well, I'll be having your queries in next 5 to 7 minutes. आप just go through or overview the review the complete video lesson. And उसके बाद I'll be taking your queries related to today's lesson. I'll see you in 5 to 7 minutes. Thank you very much.